میں یہ چاہتی ہوں کہ جس شخص نے میری بیل کینسل کرنے کی نیب میں جو درخواست لکھی ہے، میں اس اپنے ہمدرد کو نیب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمدرد کون ہے میرا نیب میں، اور قوم کو بھی وہ چہرہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کس عقل مند نے وہ درخواست لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مریم ایسے عدالت میں آتی ہیں، ایسے جاتی ہیں، یہ کھاتی ہیں، یہ پیتی ہیں، ایسے سلام کرتی ہیں، یہ بات کرتی ہیں۔ تو مجھے اس درخواست کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا چہرہ اس شخص کا جس نے یہ درخواست لکھی ہے قوم کو دکھایا جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ اور سپر انٹیلیجنٹ انسان کون ہے جو اپنی درخواست کے ذریعے نیب پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ مریم نے جو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جنرل فیض کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم ایسے فیکٹس کو سامنے لا رہی ہے جو ان کے کیس کو اور پوری سازش کو ڈیمولش کرتا ہے، لہٰذا مریم کو جیل میں ڈالا جائے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو 21 نہیں 22 توپوں کی سلامی پیش کریں۔ جی، اور اب آپ مجھے چاہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، درخواست دینے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی مقدمے سے ڈرتی ہوں، نہ آپ کے جعلی کیسز سے ڈرتی ہوں، نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں۔ اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈرا لیں گے تو ان کی بھول ہے، بالکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کریں مجھے گرفتار، کریں میری بیل کینسل، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے کہ باری باری میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے جو 2 ابھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک پیج پہ ان کے ٹکڑے کر دیے، اب 2-3 دن سے وہی ششوپن جاری ہے، تو کیا آپ لوگ کامیاب ہو گئے اس ایک پیج والے کو چھوڑنے میں؟ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے، سچ کو آپ کچھ دیر کے لیے طاقت سے دبا تو سکتے ہیں، لیکن the truth has to prevail، and انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے۔ بلکہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری یہ بات کہ بالکل آئین، قانون اور جو اختیارات دیتا ہے ایک آئینی وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئینی حقوق حاصل ہیں، تو وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں، نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے۔ اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا، نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے۔ ہاں، ایک شخص جو کہ وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے، وہ بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو، وہ جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے۔ 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے، اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں، ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو،
जिन्नात बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ा कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीज़ल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आइनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आइनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट अ ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पिछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया? क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है? और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आइनी हक़ होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज़्ज़त दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज़ शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर मैदान में आया था तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो आइनी वज़ीर आज़म था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आइनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं थी। उसकी ज़ात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज़्ज़त के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। और उस तरह की जो स्टेटस है वो अचीव करने के लिए, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के लिए आपको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कहना पड़ता है और फिर उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको अटक किले में जाना पड़ता है, आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको झूठे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको झूठी सज़ाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको जेलों में जाना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बेटी को जेल में जाता हुआ, किसी बेगुनाह बेटी को जाता हुआ देखना पड़ता है। तो आप इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सियासी पहचान क्या है, उनका सियासी तशख़्ख़ुस क्या है? उनका सियासी तशख़्ख़ुस और उनकी सियासी पहचान और उनका सियासी तारुफ जो है वो है मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना, मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म के ऑफिस के बाहर 124 कितने दिन 120 दिन का धरना देना, 126 दिन का धरना देना और कहना कि वज़ीर आज़म को मैं गले से घसीट कर निकालूंगा, और लोगों को ये बताना कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और उसके बाद नवाज़ शरीफ के मैंडेट को छीनना और उस पर काबिज़ हो जाना आवाम के इख्तियार के ऊपर, वोट की हुर्मत को पाँव के नीचे कुचल के आना, आवाम के वोट की पर्ची को पाँव के नीचे कुचल के आना, साजिश करना, आपकी तो पहचान ये है। तो आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जद्दोजहद से, एक आइनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज़्ज़त से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज़ शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना, और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता।
मैडम एक सेकेंड, और फिर आप कहना चाहते हैं ये? तो बात ये है कि आपकी जो पूरी सियासी जिद्दोजहद है पिछले 8-10 साल की, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश से इबारत है। और अगर आप ये समझते हैं कि आज आप बदतरीन, नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नज़र आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। आपको अवाम के ऊपर आपने पिछले 4 साल में जो मज़ालिम ढाए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको अवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना पड़ेगा। आपको अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा। आपको इतने बड़े बड़े नालायकी के, नाअहली के, करप्शन के स्कैंडल्स का जवाब देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान को तारीखी कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबाने का जवाब देना पड़ेगा। आपको उन तारीखी कर्ज़ों के बावजूद पाकिस्तान में एक ईंट, एक प्रोजेक्ट ना लगाने का जवाब देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस वक्त इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा करने का, बदनाम करने का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसके ज़िम्मेदार आप हैं। और नवाज शरीफ साहब जब अवाम की खातिर वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर पाकिस्तान में निकले थे, अब अवाम के अंदर निकले थे, तो उनके नारे को पजीराई इसलिए मिली थी कि उनके पीछे एक स्ट्रगल थी और कारकर्दगी थी जिसमें 5.8 पे ग्रोथ थी। दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा था, सीपेक आ रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था। तो आपके पास तो ये सब नहीं है। और अगर आप इस बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस वक्त कोई ऐसा नारा नवाज शरीफ की तकलीद में लगाना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। एक मिनट मतीउल्लाह, एक सेकंड, ऐसे नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गैर आइनी जो इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो आइनी और मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है, और वो आइन को रोंद के आया है, वो आइन का मुजरिम है, उसको वो जवाब देना पड़ेगा पहले। अच्छा मैडम, ये बताएं कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातें हैं। एक सेकंड। की जो जिद्दोजहद रही है वो इमरान खान जैसे शख्स के ख़िलाफ़ है, बल्कि अब मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर ये जिद्दोजहद करना चाहती है कि आइंदा कोई शख्स भी इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आए, और इस किस्म की डेमोक्रेसी से, जिसको डेमोक्रेसी का चेहरा बताया जाता है, उससे अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। और मुंतखब वज़ीर आज़म का जो स्टैंड होता है, जो नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था और है, उसमें ताकत होती है, उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो नौकरी और चाकरी करने वाले को सिर्फ नौकरी और चाकरी ही करनी चाहिए। उसको नवाज शरीफ की सूरत इख्तियार करने की मेरे ख्याल है कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे का खेज लगते हैं ऐसी बातें करते हैं। 1 मिनट विनोशी, अभी ने उनका सवाल खत्म हो जाए। नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ फाइनल फैसले का इंतज़ार है। पीडीएम में अब जितनी भी जमातें शामिल हैं, सब एक एजेंडे पे हैं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। जी, कयूम सदीकी साहब, एक सेकंड, कयूम सदीकी साहब, एक सेकंड, ऐसे नहीं, कयूम सदीकी साहब आप बात करें, ऐसे नहीं हो सकता भाई। 1 मिनट, चले आप कयूम सदीकी साहब आप बात करें। मेरा ख्याल है कि मेरी दरख्वास्त जो है वो, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें मैंने खोल के एक एक चीज़ बयान कर दी है। तो मुझे जो समझ आ रही थी, वहाँ दूर मैं बैठी थी, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे जो समझ आ रही थी वो ये थी कि वो इस मेरी दरख्वास्त को और नैब की अपील को साथ साथ चलाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जब मेरी दरख्वास्त पे बहस शुरू होगी, जब वो बहस को ओपन करेंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। अभी तो आज तो टेक्निकलिटीज़ की बात हो रही थी, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये भी मैं बता दूं कि अगर मुझे कोई दूसरी दरख्वास्त भी देनी पड़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पर खड़े रहने के लिए, तो मैं वो भी दूंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराऊंगी। मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है नौशीन, मैंने आपको दे दिया है कि ये अगर अपने आप को हुकूमत अपनी बचाने के लिए हो रहा है,
और अगर आपकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि जन्नात कुछ कह रहे हैं और आपका हिसाब किताब कुछ कह रहा है, तो ऐसे लोगों पे समझ नहीं आती कि इंसान हंसे या रोए कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फ़ैसला इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल और इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं, अगर वो इस किस्म के तरीक़ों से होंगे तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। आपकी तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, सॉरी, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ये जो वाक़या हुआ था जिसको मैंने अपनी दरख्वास्त में कोट किया है, ये 2018 की बात है। 2018 जी नहीं, ये मेरे केस से मुतल्लिक है। इलेक्शन में जो हुआ वो पूरे कौम के सामने है। मुझे उस वक्त सज़ा हो चुकी थी और सज़ा के बाद ये बात सामने आई, मेरी सज़ा के बाद, वर्डिक्ट के बाद ये बात सामने आई, प्रॉबली जब मैं जेल में थी, तो उस वक्त ये बात सामने आई। तो फिर मुझे अब अपील के ज़रिए ये सारे हक़ाइक़ एक रेलेवेंट मौके के ऊपर सामने रखने थे, मैंने रख दिए। एक मिनट, आखिरी सवाल, आपने दरखास्त में कहा है कि